رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک کا نام ہے دا نیو قبلہ، اور ہم اس میں دیکھیں گے ایک ہی وقت میں دو ٹائم لائنز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ٹائم لائن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جڑی ہوئی ہے، اور دوسری نزول قرآن سے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ جب ہم قرآن کو سیرہ کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہ خوبصورتی جو ہے نا اس کی نظر آتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ ایک لٹرل ایک ریولیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سیرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کی قرآن کی ورکنگ ایگزامپل ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے۔ تو ہماری آج کی جو بات ہے وہ ایک سمجھ لیجیے کہ کہانی کی صورت میں ہے، جو کہ مدینہ میں آنے والی نئی کمیونٹی جو مسلمانوں کی تھی بارے میں ہوگی، جب ان کو ایک وقت چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو جمائیں، ان کو ایک ہیلنگ ٹائم چاہیے تھا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں 13 سال جو نبوت کے بعد گزارے، اور ہر طرح کے ظلم و ستم اور تکالیف کا سامنا کیا۔ اس وقت اسلام ایک نئی سوچ تھی، ایک نیا خیال تھا، جس کو قدم جمانے کے لیے ایک صحیح مقام کی، صحیح جگہ کی، صحیح گھر کی ضرورت تھی، ایک چھت کی ضرورت تھی، ایک سائے کی ضرورت تھی۔ لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور جو بھی قرآن کو عوام میں پڑھتا اس کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اگر وہ اس کی حیثیت کمزور ہوتی تو اس کو مخالفت کے ساتھ ساتھ کافی اور مصائب کا اور ان کے عطاب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اکثر صحابہ اپنی اسلامی شناخت کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس وقت نہ کوئی اذان تھی، نہ باجماعت نماز تھی، نہ جمعہ، نہ اور کوئی ایسی چیز۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور مدینہ کی طرف ہجرت نے وہ گھر، وہ جگہ، وہ چھت، وہ سایہ جو تھا نا وہ عطا کیا، جو اس وقت کے مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ مسجد قباء تعمیر کی گئی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، نیا قانون بنا، اذان، باجماعت نماز، جمعہ عطا کیا گیا۔ تو اب کہیں مسلمانوں کو کچھ سکون ملا، کچھ ہیلنگ ٹائم ملا، خصوصی طور پر جسمانی اذیتوں سے، جو کہ مکہ میں رہتے ہوئے خاص طور پہ جو غلام تھے ان کو سخت جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہاں پر خوف کے بغیر نماز، مکے میں خوف کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چپ کے پڑھتے تھے، لیکن مدینہ میں آ کے نماز کو فرض کر دیا گیا، اور باجماعت نماز جو تھی اس کا حکم دے دیا گیا، اور خوف کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ مگر اب
किसी और तरह की मुश्किल का सामना था, जो नजर कम आती थी मगर महसूस ज्यादा होती थी। मक्के की जो मुश्किलात थी वो सामने नजर आ रही थी, मदीने में नजर आने वाली मुश्किलात नजर नहीं आ रही थी, बहुत कम नजर आती थी, मगर उस किया जा रहा था। और हम ख्याल लोगों के साथ वो जत्था भी रहता था जो अलहदा आइडियोलॉजी पर था। ये गैर मुस्लिम थे और अहले किताब भी। और इन के यानी यहूद के तीन कबीले थे जो मदीना के इर्द गिर्द आबाद थे, बनु कैनुका, बनु कुरैजा और बनु नज़ीर। और इनके अलावा वहाँ पर अरब कबाइल भी थे, क्योंकि अ, उस वक्त वो इलाका जो था एक ट्राइबल एरिया था। और उस वहाँ पर कबीलों के शक्ल में ही लोग रहा रहा करते थे। तो अरब कबाइल भी थे, और इसके साथ साथ यहूद के कबाइल भी मदीना की बाउंड्री पर आबाद थे। तो मुख्तलिफ तरह के रंग माशरे में बिखरे हुए थे, जिनका असर मुसलमानों पर भी हो रहा था। तो कहानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। और यहूद ने मक्का में अ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो वहां पर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने शुरू हो गए। तो यहूद कहते थे कि भाई ये तो हमारे किबले की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, मगर ये दीन हमारा तो नहीं है। और इसके अलावा वो कुछ मवाफ़क़त भी महसूस करते थे, क्योंकि यहूदी जो थे वो भी एक खुदा को मानते थे और मुसलमान भी। इसके अलावा आसमानी दीन, आसमानी कुतुब, वही, फरिश्ते, इन सब चीजों को, अंबिया, इन सब चीजों को वो मानते थे। और ये कुछ मुवाफिकत भी थी जो कि मुसलमानों में और यहूद में थी। तो इस तरह से एक मुवाफिकत पैदा कर अल्लाह ने बनी इसराइल को एक तरह से प्रमोट किया। क्योंकि जब किसी के साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उसको प्रमोट किया जाता है, और ये रास्ता खोला गया कि इस्लाम की तरफ आ जाओ। क्योंकि ये खुद कहते थे कि हमारा एक नबी आना है। और ये वहाँ के अरब ट्राइब्स जो थे, लोग जो थे, उनको ये कह कह के अपना रोप डालते थे कि हमारा एक नबी आने वाला है, और फिर हम उसके साथ मिलके जो है हम किताल करेंगे, जंग करेंगे और दुनिया को फतह करेंगे। तो नबी अल्लाह ताला ने दे दिया, और उसके साथ साथ अब इनकी आजमाइश शुरू होगी। अब इस सारे माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरूशलेम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मक्का में बैतुल्लाह और यरूशलेम एक ही रुख में है, यानी कि अगर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है तो उसी रुख पर यरूशलेम भी है, एक ही रुख में दोनों आते हैं। मगर मदीना में ये चीज बिल्कुल उलट है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मदीना यरूशलेम और बैतुल्लाह के सेंटर में है। सेंटर का मतलब ये है कि एक तरफ एक रुख पर बैतुल्लाह है और एक रुख पर यरूशलेम है। तो दोनों बैक वक्त दोनों की तरफ चेहरा नहीं किया जा सकता, मगर मक्का में बैक वक्त ही दोनों की तरफ चेहरा हो जाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से खुद भी यही चाहते थे कि बैतुल्लाह ही किबला हो। और
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے مگر زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ کعبہ اس وقت بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کا ایک کلچرلی ایک ان کا کلچرلی ایسٹ تھا، اور ان کو ان کے لیے ایک فخر کا مقام تھا۔ ان کی جو تھی کاروبار کا ذریعہ تھا۔ ان کی جو فوقیت تھی اس علاقے میں، ان کو بڑا مانا جاتا تھا، وہ اس کا ایک ذریعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جانتے تھے، اور یہ بھی کہ دین ابراہیم کی صحیح پیروی یہی ہے، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہی دین ابراہیم کی صحیح پیروی ہے۔ تو تحویل قبلہ کا حکم آ گیا قرآن میں، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اور پھر ساتھ ہی ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب سیرہ کو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، کہ قرآن پہلے ہی مومنوں کو بتا دیتا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں ایک سازش ہونے والی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر دیتا ہے پہلے ہی، اور ان کے انٹلیکچوئل مسلز، اسپرچول مسلز اللہ تعالیٰ پہلے ہی بنا دیتا ہے تاکہ وہ اس بحث سے صحیح طرح سے ڈیل کر سکیں۔ تو یہ ساری بات یہاں تک پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بحیثیت مسلمان اکثر اوقات ہمیں نظریاتی جنگ کرنی پڑتی ہے، بلکہ آج کل کے دور میں زیادہ ہی کرنی پڑتی ہے، مگر آپ کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے، کیونکہ بحث مباحثے تو لوگ بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اتنا کہ کرتے کرتے گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں، بات نہیں ختم ہوتی، مگر بحث کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے پہلے ہی تیار کر دیا، اور کیا کہا سورۃ البقرہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، کہ بیوقوف لوگ اب یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ اور پھر یہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی بتا دیا، اور خوبصورت جواب بتا دیا اسی آیت میں۔ کیا؟ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ جواب کیا ہے؟ کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بات تو اطاعت کی ہے، بات اللہ کا حکم ماننے کی ہے۔ تو صحیح بخاری کے مطابق یہ آتا ہے کہ تقریباً 16 سے 17 منتھس جو تھے، 16 سے 17 مہینے، وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یعنی کہ 16 سے 17 مہینے تک یروشلم جو تھا وہ قبلہ رہا، اور کعبہ ہی کو اصل میں قبلہ ہونا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ حکم دیا گیا، اور یہ حکم دینا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے کیا کہا، صحابہ نے کیا عمل کیا، سمیعنا و اطعنا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں کافی واقعات ملتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو بعض روایات کے مطابق دوران نماز حکم آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پوری جماعت کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیرا، اور پھر ساری جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ اور اس طرح بھی واقعات ملتے ہیں کہ کسی شخص نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے اپنی صلاح پڑھی، اور
वहां से सलाह पढ़ के वो निकला। तो क्योंकि मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा के अलावा और भी मुसल्ले थे, तो एक तरफ रास्ते से गुजरा तो वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। तो वहां से गुजरते हुए उसने ये कहा कि मैं अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने हुक्म, वही उतार दे, हुक्म दे दिया बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। तो वहां पर भी लोगों ने बजाय इसके, यानी कि कोई भी सवाल किए बगैर, फौरन दौरान नमाज ही इताअत की और अपना रुख जो था बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। तो किबला तब्दील हो गया, और यहाँ से यहूद ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जिनके दिलों में कज्जी होती है वो सवाल उठाते हैं इसी किस्म के, कि उन नमाजों का क्या हुआ जो पहले की थी, पहले पढ़ी थी, जो तुम लोगों ने इतना अरसा इतनी तकलीफ के साथ साथ नमाजें पढ़ी, उनका क्या बना? क्या वो जाया हो गई? और वो लोग जो कि उसी हाल में मर गए, उनको तो मौका ही नहीं मिला कि वो अपना किबला चेंज कर सके, उनका क्या बना? तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला, वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो तुम्हारी नमाजें जाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर नमाज को ईमान के बराबर करार दिया, यानी कि ईमान जाया नहीं करेगा। तो अक्सर जिंदगी में ऐसा ही होता है ना, किबला तब्दील करते हैं तो ही मसला होता है। किबला क्या होता है? किबला वही रुख होता है ना, हमारा रुख किधर है। हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी देखिए, बहुत सारी जगहों के ऊपर किबला तब्दील करना आसान काम नहीं है। और इस ये अल्लाह ताला आगे भी बताते हैं, हम इसको अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि सहाबा नमाज के बारे में फिक्रमंद होते थे, तो यहूद ने उनको उस चीज से डाउट क्रिएट किया। और यहाँ से एक बात हमें भी ये पता चलती है कि गैर हम क्योंकि उस रेफरेंस में बात करें, तो गैर मुस्लिमों के प्रोपेगेंडे में आकर अपने ईमान पर शक नहीं करना चाहिए। और अगर गैर मुस्लिम ना भी हों तो हर वो शख्स जो आपको आपके ईमान के बारे में शक में डाले, तो आप चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल शख्स हो, तो आपको एक दफा जरूर अपने दिल को देखना चाहिए कि आपके ईमान का क्या लेवल है। क्या आप ठीक हैं? क्या आप अपनी बात पे फर्म हैं? तो आपको उस डाउट को झटक देना चाहिए, आपको उस डाउट को अपने अंदर जगह नहीं देनी चाहिए। और तहवील किबला जो है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रुख बदलना नहीं था। अल्लाह ताला कहते हैं कि बनी इसराइल वही मिली उनको, उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक नबी के बाद पे दर पे नबी भेजे। यानी कि बाज दफा ये भी रवायात मिलती हैं कि एक एक वक्त में दो दो या तीन तीन अम्बिया भी रहे इनके अंदर। और ये भी है कि एक नबी की डेथ के बाद फौरन दूसरा नबी आ जाता था। यानी कि इतना ज्यादा, इतनी फ्रीक्वेंसी थी। इसके बावजूद उन्होंने हुक्म मानने से इनकार किया, नबियों को झुटलाया, और सिर्फ झुटलाया नहीं, अंबिया को कत्ल भी किया। और बेशुमार फसाद करने और बेशुमार चीजें करने इनके वाकयात से कुरान भी भरा पड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय को ज़िबा करने को कहा, तो वक्त के नबी को म- मजाक उड़ाया, उनका उनको बुली करना शुरू कर दिया। यानी एक नहीं, बहुत खराबियां थी, और इन्होंने बेशुमार दफा हदें तोड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखने के बावजूद बछड़े को माबूद बनाया। तो
अल्लाह अल्लाह ताला को सामने तक देखने का इन्होंने जो है वो कर दिया, सवाल कर दिया कि हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं इस दुनिया में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राईना कह के बुलाते, नाउजुबिल्ला। यानी इसका मतलब होता है ए गदड़िए। यानी कि उनको जिसे कहते हैं ना कि एम्बैरस करने की कोशिश करते थे। लेकिन इन सारी चीजों को कर एक साइड पे रख के अल्लाह ताला ने जो डिटेल से जो वाक्य जिक्र किया वो अल बकरा का किया। और उसमें इनकी सारी जो एटीट्यूड था उसको बताया गया। तो इनका रवैया जो था वो इत्तात वाला था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था। नस्ल पर फख्र। फिर जब मुसलमान जब मदीना में हिजरत करके आए हैं तो ये एक टोटल कॉन्ट्रडिक्शन थी, क्योंकि एक तरफ वो कौम थी जो कि अपनी नस्ल के ऊपर फख्र करती थी, और वो अपने नस्ल के अंदर किसी को आने को अप्रिशिएट नहीं करती। तो उस टाइम तक जुडाइज्म जो है इसके अंदर तबलीग नहीं है, जिस तरह इस्लाम के अंदर है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है। जुडाइज्म के अंदर तबलीग नहीं है। और जुडाइज्म उस वक्त तक किसी भी गैर यहूदी को अपने अंदर कबूल नहीं करते थे। ये बाद में कुछ अलायंसेस बने और कुछ हुआ, लेकिन पहले जुडाइज्म जो था यहूदियत अपने अंदर किसी को जम नहीं करती थी। लेकिन इस्लाम जो लोग हिजरत करके गए वो बिल्कुल टोटली एक ऑपोजिट पिक्चर थी, कि उसमें हर रंग और नस्ल का इंसान मौजूद था, और बहुत सारे गैर अरब भी उसमें मौजूद थे। और कोई गरीब से गरीब आदमी भी था, गुलाम भी थे, और अमीर से अमीर आदमी भी थे। तो वो एक ऐसी एक कौम थी जिस जो यहूदियों के अपने जो उनकी एक फख्र की जो सूरत में सामने जो वो अपने आप को समझते थे, वो टोटली उसकी ऑपोजिट पिक्चर पेश कर रही थी, जिसको बस जिसको उन्होंने सख्त नापसंद किया। और उस नापसंदीदगी की वजह से ही कि वो नबी जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आए हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं आए, तो वो एक उनके लिए बहुत नागवारी का बायस थे। तो मदीना में ज़ाहिरी तौर के ऊपर मुश्किल कोई नहीं थी, आज़ादी थी। सांस लेना आसान था, काम करना आसान था, इबादत करना आसान था, मगर और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि गैर महसूस तरीके से अ, जो कि नजर ना आती थी, लेकिन उनको महसूस करके एक फिजा कायम हो रही थी। तो अरब जो थे वहां पर, वो भी जो ट्राइब्स जो थे, जो कि मुनाफिकीन थे उसमें, वो भी नापसंद करते थे, और यहूद भी नापसंद करते थे कि ये तो हमारे तरीके पे नहीं। और अल्लाह ताला ने क्योंकि अपने दीन को एक ताकत बनाकर उभारना था, उनको अपनी शनाख्त देनी थी, और वो अल्लाह ताला ने उनको दी। तो बने इसराइल ने हर हुक्म टाला, तो अल्लाह ताला ने तहवील किबला करके, तहवील किबला से उनको ये पैगाम दे दिया कि अब तुम्हारी अमामत खत्म, इस्लाम को तुम्हारी नहीं, तुम्हें इस्लाम की जरूरत है। और यही चीज हमारे लिए भी है कि इस्लाम को हमारी नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है। तहवीला किबला की जो आयात हैं उसमें भी यही आता है कि तहवील किबला करके ये देखा गया कि कौन अपने ईमान पर खड़ा है, कौन अपने ईमान पर फर्मली कायम है। और ये काम जो है ये आसान नहीं था। अल्लाह ताला खुद कहता है, इन कानत लकबीरतन इल्ला अल्लाह, तो सिवाय इसके कि जिसके लिए अल्लाह ने आसान कर दिया। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक गारमेंट की तरह है। गारमेंट गिरता, ये गिरने वाला नहीं है। हाँ, इसको जो पहनेगा वो पहनने वाला बदल सकता है, लेकिन ये नहीं गिरेगा, ये अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगा, और ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें लोग आते जाएंगे, अगर
तुम्हें ये पहनाया गया है और तुमने इसको पहन पहन के जो काम करना है वो नहीं करोगे, तो तुम्हें बदल दिया जाएगा। और सूर्य मोहम्मद में ये आयत भी आती है इसी बारे में। जो हमने जो किबले की बात की है, इताअत की बात की है, नस्ल और मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ जुबान की बात की है, ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये आज भी दुनिया इसी चीज से गुजर रही है। ये चीजें उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ही मुखालिफतों का सामना किया। कुछ नजर आने वाली थी और कुछ ना नजर आने वाली थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया वो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं उसी तरह। बस उनके नाम बदल गए हैं। उनके जो है अ, थोड़ा सा उनके तरीके में शायद कुछ थोड़ा सा फर्क आ गया है, मगर उनके असरात वही हैं। और हम सिर्फ ये नहीं कि हम इसको एक बड़े लेवल पर महसूस करते हैं, आप ये देखें कि हम इसको एक छोटे लेवल पर भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ किबला की बात की थी। तो किबला तब्दील जब भी किया जाता है तो मसला ही होता है। और हम इसको छोटे लेवल पर भी देख लेते हैं, खानदानी लेवल पर देख लें, कल्चर के लेवल पर देख लें, कौम परस्ती के लेवल पर देख लें। ये किबले ही हैं ना जो हमने बनाए हुए हैं, कि हम जब उस चीज से निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। कि हम अपना जो रुख है, उस जो एक आइजल आइजल जो हमने बनाया हुआ है उससे हम मोड़ के, तो हम अपना रुख, चेहरा जब सही जगह के ऊपर करना चाहते हैं तो हमें इन सारी मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी मुखालफतें ऐसी होती हैं जो हमें सामने नजर आ रही होती हैं, और कुछ मुखालफतें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही होती। आप एक ऐसी घर में भी रह रहे हैं जहां पर आपको हर तरह से सुकून महसूस हो रहा है, आपकी जिस्मानी जरूरियात हो सकता है पूरी हो रही हो, लेकिन कुछ चीजें महसूस की जा रही होती हैं, लेकिन लेकिन वो नजर नहीं आ रही होती। तो उन चीजों से डील करने का तरीका भी तो अल्लाह ताला बता देते हैं ना। उन चीजों के साथ डील करने का क्या तरीका भी बता देता है अल्लाह ताला। तो सीरा के अंदर इन चीजों की बहुत ज्यादा रहनुमाई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लफ्ज जो है सुफहा, उसके बारे में एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दूसरा पारा जो है वो शुरू होता है सयकूलु सुफहा, और उसमें हम जानते हैं कि बात की गई है कि मुनाफिकीन यहूद की बात की गई है, और उनके लिए खास तौर पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो सुफहा जो है, ये इसका लिटरली मीनिंग जो आता है वो आता है खिफा। खिफा, हम उर्दू में भी खफीफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खिफा। खिफा का मतलब है लाइटनेस, कोई चीज हल्की होना। एक होता है कि अपने वजन में हल्की होना, और फिर हम इसको लेते हैं इसको कि जिस तरह कोई इंसान बात करने में हल्का है, किसी इंसान का जो है इम्पैक्टफुल नहीं है वो इतना, और कोई वीक है अपने थॉट्स में, अपने जहन में, अपनी सोच में, तो उस वो भी उस मानी में भी उस मानी में आती। दो चीजें हैं इसमें, कि एक जो ये रीजन है सफी होने की, वो आती है उम्र में तो छोटा होना, यानी कि अभी उसके अंदर उतनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई और कि उसका जो जहन है वो सही जगह पर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है। और दूसरी ये आती है कि उसके बिहेवियर में खफीफ होना पाया जाता है। बज़ाहिर तो वो शायद खानदानी लग रहा हो, नस्ल भी अच्छी हो, माहौल भी अच्छा हो, लेकिन उसका अपना एटीट्यूड जो है उसके अंदर सफी रवैया पाया जाता है।
यानी कि वो इंसान जो अपने करेक्टर में फर्मनेस ना हो, उसके अंदर कोई रेगुलेशन ना हो, सेल्फ रेगुलेशन ना हो, और उसका अपने ऊपर काबू ना हो, तो वो शख्स जो है वो भी आ, सफी कहलाता है। और हमें पहले पारे में भी ये वाला जो सुफहा का लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है, वो भी मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा पारे में भी जो है इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अम, एक और जगह भी आया है कि पहले जुज के आखिर में ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से कुछ लोगों ने रुख मोड़ा, तो अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब किया है उनको सफी सफी, यानी कि वो अपने नफ्स की तरफ वापस लौट के, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया था कि, तो वो चंद लम्हे के लिए उनके दिल के अंदर ये चीज आई थी कि ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मगर वो दोबारा से अपने नफ्स की तरफ लौटा दिए गए, लौट गए, जो कि उनको नफ्स जो था सफी था, यानी वो उनका नफ्स जो था वो खफीफ था, नादान था, बेवकूफ था, उसके अंदर खराबी थी, वो उसकी तरफ जो थे वो लौट गए। तो वो एक फुलिशनेस जिसे हम कहते हैं ना, वो उस चीज के लिए आता है। एक और जगह के ऊपर सफी हुना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको ये तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप में से कोई बता सकता है कि ये लफ्ज जो है सफी हुना, सूरह जिन के अंदर जब वो जिन्नों की जमात जो है वो जब डायलॉग जो कर रही है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि हमारे जो बड़े, और वो मतलब वो बड़े से मुराद अपना जो शयातीन और उनको शैतान को लेते हैं, कि वो उन्होंने हमें जब ये सारी चीजें बताई, तो असल में वही जो है ना, असल में नादान है, बेवकूफ हैं, उनको अक्ल नहीं है, उनके जहन खराब हैं। तो उन्होंने उनको अपने बड़ों को जो है ना सफी हुना कह के, हमारे बड़े हैं और लेकिन हैं वो बेवकूफ कह के बुलाया है। तो ये जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम एक लफ्ज को किस किस जगह के ऊपर किस तरह से प्लेस किया गया है, और उसके अंदर लफ्ज के अंदर तो जो मानी है, लेकिन उसके अंदर हम जब उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके जाते हैं और फिर हम उसको रिलेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो उसके अंदर बहुत खूबसूरत जो है ना एक तो उसका ताल्लुक बनता है। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।